Officially, good morning to all of you guys. Myself, Chandra Kumar. Today, we are going to learn chapter 1.3 The Pilgrims. First of all, we have to know about it. What do you mean by pilgrims? It means a person who journey to a scared place for religious reasons is known as pilgrims. कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक स्थल को क्या करता हो, घूमता हो, उनका यात्रा करता हो, रिलीजियस पर्पस के लिए, धार्मिक पर्पस के लिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पिलग्रिम बोलते हैं. In the last lectures, I have analyzed these topics and told you this is a phrase. The pilgrim is it is the grouping of words which gives meaning, so it is known as phrase. Okay. Few topics which we have to learn in this chapter, which is relevant to this chapter. It is figure of speech. I have told you in the last lectures about figure of speech. Figure of speech is a word or phrase used in a non-literal sense for rhetorical or vivid effect. जब हम लोग किसी भी शब्द और वाक्यांश को वाक्य को किसी दूसरे सेंस में यूज करते हैं मजाकिया तौर में, जोक के लिए या फिर डीप इंटर अटेंशन के लिए जब हम लोग यूज करते हैं, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. क्लियर है? इन दिस चैप्टर्स I have also told you what types of figure of speech you have to read out, learn here in this chapter is that there are three types of figure of speech which we have to learn in this chapter. First one is tautology, second one is inversions and apostrophe, and third one is interrogations, rhetorical questions. I have told you about all these three figure of speech in the last lectures. Tautology, I have just said that when two words comes in a sentence and give a same meaning is known as tautology. And second, inversions and anastrophe, I have said that the writer, the poet changed the grammatical writing into to give the rhyme scheme is known as inversions. इन्वर्जन्स और एनास्ट्रोफी में मैंने क्या बताया था कि तुम लोगों को राइटर जो है, पोएट जो है, वो क्या करता है? ग्रामेटिकल इरर ना देखते हुए वो राइम को क्रिएट करने के लिए, राइम स्कीम को क्रिएट करने के लिए वो क्या करता है? कुछ चेंजेस जो करता है उनको हम लोग क्या होता है? इन्वर्जन्स और एनास्ट्रोफे फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं. और इंट्रोगेशन में मैंने बताया था क्या, यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होगा? एराइज किया जाएगा, लेकिन उस क्वेश्चंस का आंसर हमें नहीं चाहिए. बस मोटिव ये होता है कि मैं क्या करूं? सामने वाला का अटेंशन गेन करूं. इंट्रोगेशंस, वी कैन से दैट द फिगर ऑफ स्पीच which ask questions but not motivated to get answer, it just want to get attentions of that persons or people. Okay guys, now come to the meanings of this chapters. There are some words which we have to know about it. First is charms. What do you mean by charms? Rewind, a very deep steep gap in the earth's surface. We can say that, in other words, suppose there is a reverse. There is a reverse. On both sides of the reverse, land is high and on, and in the mid, the bed region is deep. These types of region is known as charms. In Hindi, we can also say that गड्ढा जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या होता है? गड्ढा जिनके थ्रू वाटर क्या करता हो? फ्लो करता हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? चांस बोलेंगे. नेक्स्ट, स्पेन द टाइड, गो अक्रॉस द टाइड, जस्ट अक्रॉस द टाइड. इफ आई सेड देयर इज अ रिवर, इफ वी क्रॉस द रिवर, इट इज नोन एज स्पेन द टाइड. ओके गाइस, स्पेन द टाइड्स मतलब क्या हो गया? उस रिवर को आर पार कर जाना, क्रॉस कर जाना, एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाना. थर्ड वन इज ये, इट इज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स इन ओल्ड फैशन वर्ड्स. ये मीन्स यू. ये जो है पुराने टाइम्स में यूज हुआ करता था. पहले जो राइटर्स हुआ करते थे ये लिखा करते थे, या फिर फैशनेबल वर्ड्स है, इनको भी तुम ये बोल सकते हो. और इनका मतलब क्या होता है? यू, तुम. इवन टाइड, इवन मीन्स एटलीस्ट, अभी तक, अंत तक. ओके, इवन टाइड, लेट इवनिंग. ओके, इट मीन्स लेट इवनिंग. pitfall,
pitfall means trap, जाल. Okay. Now come guys, in this chapter we had asked few questions and try to give the answer of those following questions. Which are these questions are? First question is here. What did the pilgrims do? All thought he had already crossed the chance. पहला क्वेश्चन बोल रहा है यात्री जो है पिलग्रिम्स जो है वो जब रास्ते को क्रॉस कर लेता है फिर भी क्यों वो चांस को बनाता है. क्लियर है. Although he had already crossed the chance. Okay. Next question is what puzzles the fellow pilgrims? जो उनके साथी जो उनके पीछे आ रहे थे वो यात्री उनसे क्या पूछते हैं, पजल्स करते हैं. ओके. थर्ड क्वेश्चन व्हाट कुड बी द थर्ड पिलग्रिम्स. और तीसरा पिलग्रिम्स कौन होगा या फिर वो क्या करेगा. व्हाट कुड बी द थर्ड पिलग्रिम्स. ओके. नाउ we come and give answers one by one. First we search the answer of first question which is asked what did the pilgrim do although he had already crossed the chams. Now we read out its answers. First is here a pilgrim going along highway came at evening cold and grey. क्या बोल रहा है, एक यात्री वो जा रहा था अकेली हाईवे पे, अकेली सुनसान रास्ते पे, कैम एट इवनिंग और शाम होने वाली थी, कोल्ड एंड ग्रे ठंड का मौसम था और धुंधला होता जा रहा था. ओके. टू ए चांस डीप एंड फास्ट एंड वाइड द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इनटू लाइट डीम. एक गहरा बहुत चौड़ी फैली हुई और बड़ी गड्ढा को क्या करता है, एक बूढ़ा इंसान जो है वो क्रॉस कर जाता है. बूढ़ा पिलग्रिम्स जो है वो उनको क्रॉस करता है कब, ट्विलाइट यानी अंधेरा के टाइम पे, शाम का जो टाइम होता है वो बीच वाले जिसमें सन भी हल्के होते हैं और अंधेरा भी आने वाला होता है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्विलाइट डीम. उस टाइम पे वो बूढ़ा यात्री जो है वो क्या करता है, उस भास्ट चौड़े विशाल का गड्ढे को पार कर जाता है. द चांस हेल्ड नो फियर फॉर हिम. और वो जो गड्ढे थे बहुत बड़ा ज्वार एक प्रकार से बोल सकते हैं नदी था, उनके लिए वो कोई डरावना नहीं था. उनको देख उस बूढ़े पिलग्रिम्स को देखकर डर नहीं लगा. उनके अंदर कोई भी किसी प्रकार का डर नहीं था. बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड. लेकिन जैसे ही वो चांस को क्रॉस करता है, बड़े से रिवर को क्रॉस करता है, वो अगले साइड जाकर रुक जाता है, खड़े हो जाता है. एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पेन द टाइड. और वो क्या स्टार्ट कर देता है बनाना, और एक ब्रिज बनाना, पुलिया बनाना स्टार्ट करता है. स्पेन द टाइड, ज्वार को रोकने के लिए. यदि जब टाइड आए यानी कि पानी में तेज बहाव हो तो उनको हम लोग क्या होता है, टाइड बोलते हैं विद द एयर. तो उनको रोकने के लिए, उनको क्रॉस करने के लिए वो क्या करना चालू कर दिया, ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन से जस्ट आस्क अस. पहला क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा था कि पिलग्रिम्स जो है उन्होंने क्रॉस करके क्या किया. तो उन्होंने क्या किया, एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पेन द टाइड. वो क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया. ये काम उन्होंने किया. क्लियर है. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन व्हाट द पजल्स फेलो द पिलग्रिम्स. उनके दूसरे वाले जो है व्हाट पजल्स द फेलो पिलग्रिम्स. दूसरे वाले पिलग्रिम्स जो है उस बूढ़े से क्या बोला या फिर क्या पजल्स किया, क्या क्वेश्चंस किया, वो देखते हैं. ओके. ओल्ड मैन सेड ए फेलो पिलग्रिम्स नियर. हे बूढ़ा इंसान, हे बूढ़े यात्री. कौन बोलता है, उनके जो साथी थे दूसरे पिलग्रिम्स थे वो बोल रहे हैं उनसे. ओके. व्हाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हेयर. तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो इसे बनाने में, इस पुल को बनाने में. ओके. योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे. यू नेवर अगेन विल पास दिस वे. क्या बोल रहे हो, तुम्हारा जर्नी जो है क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है. और जैसे ही ये दिन समाप्त हुआ वैसे ही तुम्हारा जर्नी भी क्या हो चुका है, इस दिन के साथ समाप्त हो चुका है. यू नेवर अगेन विल पास दिस वे.
और तुम कभी भी इस रास्ते से दोबारा जाने वाले नहीं हो। ओके, यू हैव क्रॉस्ड द चांस डीप एंड वाइड, व्हाई built ये हेयर एवर टाइड। क्या बोल रहा है? यू हैव क्रॉस्ड द चांस, तुमने क्या किया, इस बड़े गड्ढे और विशाल के नदी नाले को क्रॉस कर चुके हो। क्लियर है? व्हाई व्हाई built ये हेयर एट एवर टाइड, और तुम क्यों ये बना रहे हो हमेशा के लिए इस टाइड को रोकने के लिए। क्लियर है? ओके, इट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। इन सेकेंड क्वेश्चन द राइटर जस्ट वांट टू आस्क व्हाट पजल्स द फेलो पिलग्रिम्स सेड। क्या उन्होंने, उनके साथी मित्र थे, जो साथी यात्री जो थे, उन्होंने क्या बोला? तो उन्होंने क्या बोला कि तुम बूढ़े इंसान, बूढ़े यात्री, तुम क्रॉस कर चुके हो रिवर, इस डीप 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 रिवर को, फिर भी तुम इस पे पुल क्यों बना रहे हो, जबकि तुम कभी इस पर आने वाले भी नहीं हो। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। द पिलग्रिम्स sent his old grey, okay, sorry. The pilgrims raised his old grey hairs. My friend, in the path I have come, he said. उनके तो वो क्या बोलता है, अपना सर जो है उठाता है, रेज करता है, और वो बोलता है माई फ्रेंड इन द पाथ, मेरे दोस्त जो है वो आने वाले हैं। आई हैव कम, मैं आ चुका हूँ, लेकिन मेरे दोस्त जो है वो आएंगे। कौन बोलता है ये? बूढ़ा पिलग्रिम्स बोलता है, ओल्ड पिलग्रिम्स बोलता है। देयर follow the path after me, और वो जो है मेरे बाद आने वाले हैं। क्लियर है? मैंने जिस पाथ पे चला और वो क्या कर रहे हैं, उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो मेरे पीछे आ रहे हैं। ए फेयर हेयर्ड यूथ यू मस्ट हु मस्ट पास दिस वे, और एक युवा जिनका बाल क्या होगा, सही होगा, हैंडसम होगा बंदा देखने में, वो क्या करेगा, इस रास्ते से पास करेगा, क्योंकि वो मुझे फॉलो करता हुआ आ रहा है। द चार्म्स विच हेल्स नो फेयर फॉर मी, ये जो गड्ढा है मेरे लिए फेयर की, डर की चीज नहीं है। टू द फेयर हेयर्ड यूथ मे बी फिट फॉल बी, लेकिन जो युवा मेरे पीछे आ रहे हैं वो हो सकता है कि इस गड्ढे में क्या हो, गिर जाए। क्लियर है? ही टू मस्ट क्रॉस इन द टू लाइट, और वो भी जो है जब क्रॉस करेगा तो उस टाइम समय जो होगा वो क्या होगा, धुंधला होगा, और उसी वक्त उनको क्रॉस करना होगा या फिर वो क्रॉस करेगा। ही टू मस्ट क्रॉस इन द टू लाइट ड्रीम्स। ओके, माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, ये जो मैं रास्ता बना रहा हूँ या फिर ब्रिज बना रहा हूँ, ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ, ना कि मेरे लिए बना रहा हूँ। क्लियर है? ओके, देखो अब सिंपल सी बात है, राइटर्स पोएट जो है यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, ये युवा पीढ़ी जो है उनको मैसेज देना चाह रहा है क्या, कि जो भी काम तुम कर रहे हो, जिस रास्ते पे चल रहे हो, उस रास्ते को क्या करो, अच्छे बनाओ अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए। जो बच्चे अभी आए नहीं है, जो आएंगे आगे फ्यूचर में, उनके लिए क्या करो, कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट करो कि उनको हानि ना हो। क्लियर है? और जो भी रिसोर्सेस हमारे पास है, उस रिसोर्सेस को हमें अपने आने वाले फ्यूचर्स के लिए भी सेव करके रखना है। राइटर्स ये बोलना चाह रहे हैं पोएम्स के माध्यम से। क्लियर है? Here, the writer just want to say that what we have got the resources just have to save for our future generations. Okay, I have passed I have passed our life, but our future generations is now will be coming to serve his or her life. So we should have to save the resources for him. Okay guys, हमारे पास जो भी है, यदि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो यदि खराब है या फिर किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके क्या करना है, हमारे आने वाले पीढ़ी को देना है। ये यंग हेड बॉयज किनको जनरेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑल पिलग्रिम्स, ये आने वाले पीढ़ी को बताना चाह रहे हैं कि ऑल हेड यूथ, ए फेयर हेड यूथ कौन होगा, वो आने वाली पीढ़ी होंगे, फ्यूचर जनरेशन होगा। क्लियर है? जो हम लोगों ने गलती कर लिया है
वो गलती हमें दोबारा दोहराना नहीं है, क्योंकि यदि हम लोग जो गलती दोहराए हैं और यदि हमारा फ्यूचर यूथ भी वही गलती को दोहराएगा तो क्या होगा, हमारा कंट्री का, हमारा देश का, हमारा स्टेट का, हमारा राज्य का, हमारा फैमिली का प्रोग्रेस रुक जाएगा, वो प्रोग्रेस नहीं होगा। सपोज करो यदि हमारे पापा नहीं पढ़े होते हैं या फिर पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो वो क्या सोचता है कि हमारे बच्चे क्या हो, पढ़े लिखे हो, क्योंकि जो गलती उन्होंने किया वो गलती दोबारा ना हो, जो उनका फ्यूचर जनरेशन हो वो क्या हो, बेटर हो उनसे, ये सोचते हैं हर पेरेंट। सेम उसी प्रकार जो पिलग्रिम्स है वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सोच रहे हैं, यूथ्स के लिए सोच रहे हैं। क्लियर है? एंड राइटर जस्ट वांट टू गिव दिस मैसेज टू द ऑल यंगस्टर्स एंड ऑल पीपल्स ऑफ आवर कंट्री और अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? This is the poems, it is the summary of the poems. You have to try to understand and read out at your homes. Now come to the next homework. Try to complete exercise of chapter 1.3, The Pilgrims. If you get any problems, you can ask me questions in the next lectures. I will told you. Okay. Please subscribe the channels and press the bell icon. Thank you guys for joining classes. Stay home, stay safe.